A very good morning, class 9. Today we are going to discuss about representing real numbers on the number line. Okay, from the smaller standards you have been representing the various numbers on the number line, like starting from the natural numbers, then whole numbers, then integers, gradually fractions, and then rational numbers as well. Okay, now today real numbers, we will discuss about representing real numbers. Real numbers means rationals and irrationals, or you can say that irrational numbers को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने प्रीवियस सेक्शन में सीखा था. ओके, इससे पहले जो वीडियो में irrational numbers को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने सीखा था. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट बेसिकली द two types of decimal expansion that are terminating decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion and non-terminating recurring decimal expansion. Both are rational, है ना. Terminating decimal expansion are rational numbers, and non-terminating recurring means repeating decimal expansion are also rational numbers. So taking one example I am taking, and you will see the other example of your book and the two questions of the exercise 1.4 as well. Okay, in exercise 1.4 there are two questions you will be doing by yourself. You should understand this example by heart, then this is very simple concept. Okay, no problem in this. So example 1 is locating 2.665 on number line. Okay, we will be representing 2.665 on number line. So the very first step, understand the things clearly. Okay, first on the first number line. Okay class, taking example 1 as locating 2.665 on number line. So it is very obvious that it is a terminated decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion, rational number. It means it is ended. Okay, 2.665. Now in the first number line that you are seeing, just observe the things clearly. Okay, try to understand the things clearly with the very first step. So what is there? You are seeing the representation of integers on the first number line. Okay, the integers are represented 0, 1, 2, 3, 4 and this. Now you have to represent this number on the number line. You can see very well that it is 2.665. It means it is between 2 and 3. Okay, we have to talk about 2 and 3. तो हम इसी पोर्शन को मैग्नीफाई कर लेते हैं. ओके, इट मीन्स जो आप ये डेसिमल एक्सपेंशंस को आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दिस यू विल डू बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन. इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मीन्स हम थोड़े से पोर्शन को मैग्नीफाई करके इंक्रीज करके देख रहे हैं. सो 2 और 3 के बीच में आपको पता है कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. तो आपने 2 और 3 को मैग्नीफाई करके क्या किया, 2 और 3 को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सो दिस इज़ योर द फ्रैक्शंस ना. आप जैसे अगर आप 1/10 को रिप्रेजेंट करते थे छोटी क्लासेस में, या ओके 1/10 ही ले लीजिए, 1/10 को रिप्रेजेंट करते थे आप छोटी क्लासेस में, तो आप क्या करते थे, 0 से लेके 1 तक के नंबर लाइन पर 0 से लेके 1 तक का पोर्शन आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे ना. दैट इज़ योर 1/10. फिर 0.1 आपका 1/10 आता था ना. 0.1 1/10 आता था. वैसे ही 2 नंबर डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर डिजिट है तो आप और ज़्यादा छोटे पोर्शन के और ज़्यादा 10 इक्वल पार्ट्स करते थे. तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा. तो आपने क्या किया, 2 और 3 के 10 इक्वल पार्ट्स किए. जब आपने 10 इक्वल पार्ट्स किए, सो दिस इज व्हाट 2.1. ओके, 10 इक्वल पार्ट्स मीन्स क्या, 1/10 पार्ट हर एक 0.1 हो गया ना. तो 2 में जब ये कितना पार्ट है, दिस इज 0.1 पार्ट ना. दिस इज अगेन 0.1 पार्ट, क्योंकि ये टोटल 10 पार्ट्स का एक पार्ट 0.1 होगा ना, 1/10 होगा. That is 0.1. So 2.1, 2.2, 2.3, likewise you get 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and 3. It means 1/10 हो रहा है सबका, 1/10 ऐड हो रहा है. तो यहाँ पर अब आप 2.665 को जब आपको करना है तो आप
यहाँ पर आपको और छोटा पोर्शन मिल गया, ठीक है। 2, 3 में से आपने और छोटा पोर्शन फाइंड कर लिया कि 2.665 कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, है ना, इनके बीच में होगा ऑब्वियसली। यहाँ तो नहीं होगा ना 2.665, यहीं होगा 2.6 और 2.7 के बीच में दिस नंबर। तो आपने फिर 2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई किया, दिस इज 2.6, 2.7। अगेन आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स अब आपका फिर से ये वाला पोर्शन जो है 1/10 पोर्शन, सो दिस इज व्हाट, दिस विल बिकम 2.61। 2.61 के बाद क्या आता है, 2.61 ना, 2.62, 2.63, 2.64, here comes 2.65 and 2.66, 2.67 and likewise, means 0.01 ऐड हो रहा है अब, ओके 0.01 ऐड हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जो आपने 10 इक्वल पार्ट्स किया था ना, तो उसका भी एक छोटा पार्ट लेके आपने फिर से 10 में कर दिया। इट मीन्स आप एक्चुअल वाली नंबर लाइन के ये जो नंबर लाइन है ना आपकी, एक्चुअल वाली नंबर लाइन के 100th पार्ट में आप चल रहे हैं। 2 बार कर चुके ना, 0.1/10, सो हेयर यू गेट 2.66, 2.67। अब आपको पता है कि 2.665 है, तो इट मीन्स 2.66 और 2.67 के बीच में ही होगा, है ना। 2.66 के बाद क्या आएगा, इसको मैं और इक्वल पार्ट में और छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी तो 2.661 आ जाएगा ना। तो इस वाले पोर्शन को आपने फिर से मैग्नीफाई किया, फिर से 1/10 में आपने डिवाइड किया, 1/10 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर आपका हो गया 2.66 डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्लास, ये विद स्केल ही होनी चाहिए नंबर लाइन, और ये पोर्शंस जो हैं ये इक्वल डिवीजन पर ही होने चाहिए। इट इज़ वेरी कंपलसरी, ओके। सो यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू दिस अबाउट दिस। सो हेयर कम्स 2.66 एंड 2.67 को अगेन आपने मैग्नीफाई कर दिया इतने पोर्शन को, एंड यू गेट 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 and this is your number 2.665, which is your question that you have to represent. It means basically आप कर क्या रहे हैं, आपने 1/10 में किया, फिर 1/10 में किया और फिर 1/10 में किया, है ना। 1000th पार्ट पर पहुंच गए आप 2 और 3 के। इट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपने 2 और 3 को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैग्नीफिकेशन हमने इसलिए यूज़ किया, लाइक वी कैन सी द स्मॉलर पोर्शन clearly, okay। So this is the basically locating your terminating decimal expansion on the number line. I hope you will understand all the process, and you can try for the other example as well as the 2 questions. Moving further, for the non-terminating repeating decimal expansion, okay, you are seeing a bar in the next example. So this bar is what? This bar is what? This is the non-terminating. This bar represent that it is the decimal expansion which is non-terminating and repeating. Okay. अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो हमेशा आपको, बिकॉज आपको नहीं पता ना 7 तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट इज़ रिपीटिंग, तो आपको कुछ लिमिट तो चाहिए होगी ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी दैट दे आर सेइंग दैट रिप्रेजेंट विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। इट मीन्स 5 पॉइंट के बाद आपके 5 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। सेम ही प्रोसेस जो आपने ऊपर किया, फर्स्ट 5 और 6 को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन आप 5.